All right. So yes guys, welcome to this session, and here we are primarily going to focus on the chapter residential status, and I'm very sure that you guys have completed residential status well. Okay, so first of all, let's start with the assignment which we had done on residential status. And yes, the output which I have received from all of you is amazing, super duper amazing. Many of you, and believe me, it's a triumph for me that many of you have been able to find case laws from Google, and accurate case laws, exact case laws which I wanted, which I had written in my answers to this assignment. Some of you have been able to find out exactly those case laws, and this is amazing. This is amazing. An intermediate student finding out exact case laws, this is par excellence. So big congratulations to all of you, and I'll be naming students who have been able to crack the case laws as well. And guys, if you think that sir, we don't know how to search for case laws, we don't know how to Google out case laws, it's very simple guys. You just have to write your issue in minimal words. Like in the assignment I had given you a passport forfeiture. So if it is a case of passport forfeiture and due to passport forfeiture the residency is being made, then you have to just write on the Google passport forfeiture, residency made, case law, income tax, and that is how you are going to see all the case laws which are there on passport forfeiture and residency. So you write these two words and you will find all the case laws in this regard. So this is an easy way of finding out case laws. And yes, only a few students have been able to find out the case law. So let me start the assignment, and then I'll be disclosing the names of the students who have been able to disclose the case laws. All right, the assignment. First of all, who all submitted the assignment? That list is very important, because many students choose not to submit the assignments also, which is very heartbreaking. But yes, these are the name of the students who have submitted the assignment: Aditi Garg, Ankit Kohli, Ayushi, Bishnu, Darsh, Dilip, Harshit, Himanshu, Jimmy, Jyotish, Manoj, Mohit Kohli, Muskan, Nabya, Nancy, Nazim, Praveen, Pranay, Pranjal, Preeti, Rajnandini, Rani, Ravi, Sachin, Shivansh, Sonal, Suman Bharti, Tanupriya, Vidhi and Yogesh. These are the students who have submitted the case law. And guys, this is actually an amazing achievement for all of you, because I have already told you that even by doing these small steps, you will be one step closer to your goal, one step closer to your goal, one step closer to your goal, and that will be the real success for all of you. Okay, now let us start the assignment and let us see what was the answers of the assignment. So you can open your assignment sheet also, where you have submitted your answers. You can open that and you can check your answers simultaneously. Alright, in the comment box, please tell me if my Word document is visible to all of you. Is the Word document visible to all of you? Alright. Okay. So, the question number 1 was, Atul is a foreign citizen. His father was born in Delhi in 1951. Mother was born in England in 1950. His grandfather was born in Delhi in 1922. Atul visited India to see Taj Mahal and visit other historical places. He came to India on 1st November 2021 for 200 days. He has never come to India before. His residential status for assessment year 22-23 will be: A, he is a non-resident; B, he is a not ordinary resident; C, he is a resident in India; D, none of the above. Guys, the correct answer is non-resident. Most of you have been able to answer me correctly on this particular part. Most of you have written non-resident, but yes, some of you had fallen for the trap. The trap was, yes, 200 days are given in the question, but it doesn't mean 200 days of the current financial year. 200 days starts from 1st of November 2021, and from that
whatever is the number of days till 31st March 2022, those will be counted and not the entire 200 days. So many students have written the answer that sir, because Mr. Atul was in India for more than 182 days, therefore he is a resident. That is an incorrect answer. The correct answer is that he is a non-resident because he doesn't satisfy the stipulated condition of number of days stay in India. Now, part 2 of this particular question, which most of you have done incorrectly. 90% of students have done this question incorrectly. Part 2. I don't know why part 2 was done incorrectly by most of the students. Part 2 is the residential status of Indian citizen Mr. Monty. You have to ascertain the residential status of an Indian citizen. His name is Mr. Monty, who leaves India as a member of crew of Indian ship or for the purpose of employment outside India, who stayed in India during financial year 21-22 for 130 to 160 days and for 368 days during previous year 17-18 to 2021. Earning Indian income is 16 lakh rupees. And the person is not liable for tax in any other foreign country owing to his not maintaining residency in any other state. Now, first of all, let me tell you name of those students who have done this question correctly. Very few. Okay, first one is Shivansh Shukla. Shivansh Shukla, very good. You have been able to crack this question perfectly. Second is Sachin Kumar. Perfectly, Sachin Kumar has given this answer correctly. Sachin Kumar. Third is Sonal. Sonal has been able to answer this question correctly. So these 3 students have answered this question along with the right explanation also. They have given the right explanation also. Now, there are 2 more students who have answered this question correctly, but they have not written the explanation. They are Muskan Chauhan and Pranay. Muskan Chauhan and Pranay, they have given the right answers, but they have not explained the logic behind the right answer. So they have written RNOR. So they have written RNOR, but they have not written the right answer. They have not given the explanation. So I would like to ask them only what is the explanation, if they can tell me. So Pranay, are you there on the call? Yes, sir. Yes, Pranay. Pranay, you had answered RNOR. Can you explain the, or can you just tell me the section according to which this person is RNOR? Or tell me the logic. 6C. 6C. Incorrect answer, Pranay. This is not 6C question. Muskan Chauhan. Muskan Chauhan. Yes, sir. Yes, tell me which section makes this particular person RNOR, or explain. Don't tell me the section, at least explain. यस सर, उसमें क्या था कि ये इंडियन क्रू से है तो एक्सेप्शन लगना चाहिए था सेक्शन C1C, पर ये जो है ये बंदे ने कहीं पे वो टैक्स लो तो दे नहीं रहा है, तो इंडिया में वो टैक्स देगा और उसके डेज भी कितने हैं? हाँ, इसके डेज 132 160 डेज रह रहा है, तो 182 डेज से कम है, तो हम सेक्शन एडिशनल कंडीशन देखेंगे, उसमें वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए वो RNOR है. लेकिन एक चीज बताओ सर, ये 16 लाख से ऊपर से है, 16 लाख से ऊपर है. इसी के इंडियन सिटीजन, कुछ इंडियन सिटीजन वाला है ना, उसमें इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख है, तो इसकी इनकम 16 लाख है, तो इसमें भी वो टैक्सेशन होगा उसका. किस सेक्शन में? सेक्शन का नंबर बता दो. सेक्शन का नंबर 61A. Perfect. Got it right. So guys, most of the students have not been able to understand the tricky part of this particular section. तो yes, 3 students ने with full explanation अपना आंसर बिल्कुल करेक्टली दिया, शिवांश, सोनल एंड सचिन. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जबरदस्त कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई थी. इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. सिंपल, इंडियन सिटीजन है और मेंबर ऑफ क्रू की तरह बाहर जा रहा है या एम्प्लॉयमेंट की तरह बाहर जा रहा है. अगर ऐसा होता है तो आप 182 डेज की कंडीशन को फुलफिल करते हो. अगर बाहर जा रहा है तो 60 डेज वाली कंडीशन आप पे नहीं लगती.
आप 60 डेज वाली कंडीशन पे फॉल नहीं करोगे, आप 182 डेज स्टे इन इंडिया वाली कंडीशन पे फॉल करोगे। मतलब अगर आप 182 डेज इंडिया में हो तो फिर आपको रेजिडेंट माना जाएगा, अगर आप 182 डेज इंडिया में नहीं हो तो आपको रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है इन दो केसेस में, क्रू ऑफ इंडियन शिप और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अब देखना इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में आगे जाके बोला जा रहा है कि अर्निंग फ्रॉम इंडियन सोर्स इज 16 लाख रुपीज विच इज मोर देन 15 लाख रुपीज एंड दिस पर्सन इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर फॉरेन कंट्री ओइंग टू हिज नॉट मेंटेनिंग रेजिडेंसी इन एनी अदर स्टेट। अब देखो, अगर ये आगे की बात ना लिखी होती तो मैं आंख बंद करके एज्यूम कर लेता कि ये पर्सन नॉन रेजिडेंट है, 182 डेज से कम ये इंडिया में है तो ये पर्सन नॉन रेजिडेंट है, मैं ये चीज आपको कह देता। लेकिन क्योंकि ये एडिशनल चीज लिखी है यहां पर दैट इंडियन इनकम इज अबव 15 lakhs एंड ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अ सिटीजन, एलिजिबल टू बी अ रेजिडेंट ऑफ एनी अदर स्टेट, इस वजह से यहां पर इंसर्ट किया जाता है सेक्शन। और मैं सबसे चाहूंगा कि सब चैट बॉक्स में लिखो क्या है सेक्शन का नाम, जहां पर निर्मला सीतारमन जी ने अभी लास्ट ईयर ही ये वाली एक्सेप्शन को इंट्रोड्यूस किया और रेजिडेंसी बेस को सिटीजनशिप बेस पे चेंज कर दिया। सेक्शन का नंबर चाहिए मुझे, सब स्टूडेंट्स लिखेंगे चैट बॉक्स में। आकाश छाबरा 66, नो आकाश, रॉन्ग आंसर। सचिन कुमार परफेक्ट, सोनल अग्रवाल ने चेंज कर दिया। विधि पोदार परफेक्ट, आयुषी परफेक्ट, ज्योतिष परफेक्ट, अंकित कोहली, महेश्वरी, सोनल अग्रवाल, रवि 61 स्मॉल एनी बड़ा है भाई, बड़ा है स्मॉल एनी, जो स्मॉल ए लिखेगा गलत, स्मॉल एनी बड़ा है कैपिटल ए। चित्रा कोहली परफेक्ट, ललित परफेक्ट, मोहित परफेक्ट, पलिक परफेक्ट, हिमांशु परफेक्ट, प्रणय परफेक्ट, हिमांशु भल्ला परफेक्ट, सुमन भारती परफेक्ट, शुभम, मोहित राइंसवाल, प्रीति, सचिन परफेक्ट। सेक्शन 61A, सचिन ने लिखा है 16 है, पता नहीं 16 सेक्शन पे कहां पहुंच गया सचिन। 61A और गाइज लिखने का तरीका समझो, देखो मैं अब टाइप करके बता रहा हूं लिखने का तरीका क्या है। 61A ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर नहीं है। 61A, 1A is within brackets, so this is the right way of computing of writing this particular section। तो हाँ यहां पर ये कैच था कि और जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं उसके तहत मॉन्टी रेजिडेंट नहीं बन रहा था, लेकिन क्योंकि ये वाली एक्सेप्शन अगर हम यूज करें 61A की, इसके तहत मॉन्टी रेजिडेंट बन गया। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा ये बात अलग है, लेकिन मॉन्टी रेजिडेंट बन गया ड्यू टू दिस एक्सेप्शन विच हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर करंट फाइनेंस मिनिस्टर। सो ये वाला कैच क्लास में 90% स्टूडेंट्स नहीं पकड़ पाए और सही आंसर दिया सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने। लेकिन वो जो 5 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड क्लैपिंग फॉर ऑल दोस 5 स्टूडेंट्स। मैं नाम एक बार फिर लेना चाहूंगा उन सारे स्टूडेंट्स का, शिवम शुक्ला, सोनल, सचिन कुमार, मुस्कान चौहान एंड प्रणय। These students have given the right answer of this question, जहां पर 90% स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको जबरदस्त फंसाया और आप सब फंस गए, कुछ नहीं भी फंसे, कुछ फंस गए। अब देखना मैंने आपको कैसे फंसाया। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपसे पूछा कि आपको बताना है 61C की कंडीशन एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। इसका मतलब क्या हम एक्सेप्शंस टू सेक्शन 61C में फॉल कर जाएंगे, पहला पार्ट देखना, पार्ट ए। हर्षित राजपूत is employed with Tata Consultancy owing to a project in Germany. He is seconded to Germany for purpose of his employment. He returned back after 2 years when the project was over. अब आपको सिर्फ इतना सा बताना था कि exceptions to 61C में क्या मैं जाऊं, क्या मैं उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करूं या मैं एप्लीकेबिलिटी चेक ना करूं। इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था, जस्ट रीड द सेक्शन एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ लेट्स रीड द सेक्शन। Section says the exception to section 61C is applicable to an individual who leaves India for the purpose of employment outside India। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको सामने दिख रहा है, आउटसाइड इंडिया। मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो समझना जरा, एम्प्लॉयमेंट उस पर्सन की इन इंडिया नहीं होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडियन कंपनी है और उसने जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी वो भी इन इंडिया प्रोवाइड करी। तो अगर हर्षित एम्प्लॉयड इंडिया में है लेकिन जाता बाहर है तो एक्सेप्शंस में वो नहीं
फॉल करेगा, एक्सेप्शन उस पर नहीं अप्लाई करेगी, क्योंकि एक्सेप्शन सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई करती है जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं और जिनकी एम्प्लॉयमेंट भी आउटसाइड इंडिया है। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन उसको हायर करता है, अमेजॉन यूएस हायर करता है उस पर्सन को, आउटसाइड इंडिया लेकर चला जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह, और वीडियोस में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस वाले पॉइंट को, द एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इनसाइड इंडिया, और इस केस में एम्प्लॉयमेंट वाज इनसाइड इंडिया। टाटा कंसल्टेंसी इज एन इंडियन कंपनी, so the employment was inside India and that is not permissible. So that is why in this particular question the exception is not applicable on Harshit, exception is not applicable, क्योंकि वो भाई जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वो इन इंडिया कर रहा है, वो आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा। और ये सेक्शन सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई करता है जो इंडिया से बाहर भी जाते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट भी आउटसाइड इंडिया करते हैं, इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट नहीं करते। अगर आप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कर रहे हो और आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाते हो तो आप पे एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। नंबर ऑफ डेज की तो बाद में बात आती है, सर इसमें तो नंबर ऑफ डेज भी कम है, हाँ मैं मानता हूं कम है, लेकिन वो बाद की बात आती है। पहले तो बताओ कि एक्सेप्शन में जाओगे भी या नहीं जाओगे। आंसर इज नहीं जाएंगे, क्योंकि हर्षित इंडिया में जॉब कर रहा है। यहां एक्सेप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर जॉब कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर। सो यस, मोस्ट ऑफ यू हैव बीन एबल टू गिव करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। और अब जिस क्वेश्चन में सबने गलती करी, अगेन 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, वो है पार्ट 2, पार्ट बी। मोहित कोहली वॉज अ रेस्टोरेंट ओनर इन पंजाब। मोहित कोहली रेस्टोरेंट ओनर है पंजाब में। इन द करंट ईयर ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी इन पंजाब एंड मूव टू कैनेडा फॉर ओपनिंग अ फूड चेन देयर। अब आपको ये बताना है कि क्या एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में बिजनेस भी आता है, क्या एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में, क्योंकि देखो पक्का बाहर जा रहा है, जो बिजनेस हो रहा है वो बाहर हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा, और इंडिया से छोड़ भी रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में अपना बिजनेस भी आता है? एक फेमस केस लॉ है, क्या कहता है? एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन ऑल्सो। इन एनी केस इट शुड बी आउटसाइड इंडिया, बस शर्त यह है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। In case of CIT versus Abdul Razak 2011, 198 taxman won. Hence, Mohit will be eligible to claim exception if he is an Indian citizen. Mostly students ने यहाँ पर error किया। Mostly students ने बोला सर ये कोई employment थोड़ी है, ये तो भाई business है। सर अगर ये business है तो exception में fall नहीं करेगा। अरे नहीं भाई नहीं। अब देखना जजेस ने बड़ी प्यारी बात बोली। रविंदर भट्ट was the judge। रविंदर भट्ट ने क्या बोला? रविंदर भट्ट ने बोला business is also an employment and business is self employment। तो business क्या होता है? self employment, आप अपने ही एम्प्लॉय हो, आप अपने ही काम में कार्यरत हो। so business is also included in this category। ये बोला CIT वर्सेस अब्दुल रजाक ने। अब देखो मैं कमाल के एक बच्चे का नाम लेता हूं जिसने केस लॉ भी ढूंढ दिया, ये एग्जैक्ट केस लॉ ढूंढ दिया। नाम है सोनल। सोनल प्लीज ओपन योर कैमरा। Sonal, please open your camera. Very good Sonal, brilliant, brilliant, amazing. Sonal, ये केस लॉ कैसे ढूंढा आपने, मुझे बताओ जरा। गूगल पे सर्च किया तो बहुत सारी लिस्ट मिल गई थी, तो उसमें मुझे ये केस लॉ भी मिल गया। अरे कैसे सर्च किया? हम सब तो सर्च कर नहीं पा रहे। तुम्हारे पास क्या स्पेशल गूगल का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तुमने? नहीं, आपने लिखा था ना, नहीं कर रहा। आपने इधर एम्प्लॉयमेंट लिखा था ना, हाँ। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सर्च किया तो मुझे मिल गया। सुपर, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। अच्छा एक चीज और बता दो, ठीक है? सच सच वो जो तुमने हचिनसन और वोडाफोन का सच में मैंने बनाया, मैंने बनाया, पास में लेके बैठी हूँ, देखो पूरा मैंने बनाया, सच में। सोनल, क्या तुमने केस लॉ भी पढ़ा है ये बनाने से पहले? हाँ। सोनल, अगर ये तुमने बनाया है ना तो इस कंट्री की नेक्स्ट हरीश साल्वे तुम हो, इस कंट्री के नेक्स्ट पी चिदम्बरम या निर्मला सीतारमन तुम हो। बिकॉज जो तुमने इंट्रिकेट चीजें इस डायग्राम में डाली हैं, जो इंट्रिकेट चीजें इस डायग्राम में हैं, वो यकीन मानना कोई प्रोफेशनल जिसने वो केस लॉ बहुत बार पढ़ा हुआ हो, 300 पेज का केस लॉ है, 300 पेजेस का केस लॉ, जिसने वो बार बार केस लॉ पढ़ा हो वही इस तरह का डायग्राम बना सकता है। और ये जो तुमने केस लॉ निकाला है गूगल से, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो बहुत ज्यादा केस लॉ निकाल सकता है, लेकिन अगर तुमने केस लॉ निकाला है, इट इज रियली ब्रिलियंट, इट इज रियली टू गुड। सो यस, सोनल वाज फर्स्ट पर्सन जिसने आंसर भी सही दिया और केस लॉ भी निकाला। मुस्कान चौहान इज द सेकंड पर्सन जिसने आंसर सही दिया। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मुस्कान, आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
शिवांश शुक्ला इज द थर्ड पर्सन जिसने आंसर बिल्कुल ठीक दिया सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट का। ठीक है, ए का तो मोस्टली का सही है, ए का मोस्टली का सही है, मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं। बी पार्ट शिवांश शुक्ला, आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रिलियंट। शिवांश शुक्ला प्लीज ओपन योर कैमरा। शिवांश शुक्ला, Yes, sir. where are you? Very good Shivansh, brilliant. How could you get both the tricky questions correct? Tell me the secret. सर ऐसे ही कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा, बस ऐसे वो। अच्छा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया तो मतलब ऐसे सही आ गया। अगर ज्यादा दिमाग लगा देते तो क्या होता फिर? सर मैंने लेक्चर ही कल बैठ के देखे थे सारे। ब्रिलियंट। अच्छा शिवांश, एक और जबरदस्त चीज शिवांश के बारे में, शिवांश ने वोडाफोन केस का एनालिसिस इतना बढ़िया किया है, इतना बढ़िया किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू निकल के आया था वही शिवांश का व्यू है। जिस सुप्रीम कोर्ट के व्यू को सब्सिक्वेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट को चेंज करके बदला, उसे गलत साबित किया जबरदस्ती, लेकिन शिवांश का जो व्यू है वो एग्जैक्टली वही व्यू है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का निकल के आया था वोडाफोन हचिनसन केस में, जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। सो ब्रिलियंट शिवांश, ब्रिलियंट, वेरी गुड, सुपर्ब। ओके, लेट मी मूव फर्दर नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। भाई बता दो, पासपोर्ट जबरदस्ती जब्त कर लिया गया, पासपोर्ट वॉज इंपाउंडेड और उसकी वजह से 182 डेज क्रॉस हो गए, अदरवाइज 182 डेज क्रॉस नहीं हो रहे थे। इनवॉलंटरी स्टे इन इंडिया, जबरदस्ती रोका गया किसी को, 182 डेज क्रॉस नहीं हो रहे थे। जेम्स ऑल्टरमेंट का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मतलब ये रेशो रही 70-30, 30 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, 70 स्टूडेंट्स ने गलत जवाब दिया। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने बोला कि सर जबरदस्ती रोका है तो क्या हो गया, 182 डेज तो क्रॉस हो गए ना। अगर 182 डेज क्रॉस हो गए सर तो आप रेजिडेंट बना लो। लेकिन सही आंसर है सुरेश नंदा वर्सेस सीआईटी दिल्ली हाई कोर्ट का केस, जिसके अंदर बोला गया इनवॉलंटरी स्टे ऑफ असेसी इन इंडिया caused by unauthorized impounding of passport must be excluded from determining his residential status. Hence, James is a non-resident. और इकलौती लड़की जिसने इसका केस लॉ निकाला और उसे एक्सप्लेन भी किया, नाम है सुरेश नंदा, सुमन भारती। सुरेश नंदा तो केस लॉ का नाम है, सुरेश नंदा वर्सेस सीआईटी दिल्ली हाई कोर्ट। सुमन भारती प्लीज ओपन योर कैमरा। एंड सेकंड नाम जो मैं लेना चाहूंगा ज्योतिष का आंसर एकदम परफेक्ट, एकदम टू द पॉइंट आंसर ज्योतिष एंड सुमन भारती, टू स्टूडेंट्स हु वर एब्सोल्युटली बैंग ऑन एंड हु हैड एक्सप्लेन्ड इट वेल आल्सो। वेरी गुड ज्योतिष, ब्रिलियंट आंसर, ब्रिलियंट। ज्योतिष, केस लॉ क्यों नहीं ढूंढ पाई ये बताओ। केस लॉ तो ढूंढ के लिखे हैं सर हम। अच्छा, केस लॉ लिखा है तुमने? हाँ, तभी मैंने तुम्हारा नाम Yes, लिखा है। ठीक है, परफेक्ट। तो 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केस लॉ भी ढूंढा है, सुमन भारती एंड ज्योतिष। अब ये बताओ केस लॉ कैसे ढूंढा? सर वो गूगल पे मैंने टाइप किया, अगर कोई पर्सन इंडिया आ रहा है और उसको उसका पासपोर्ट किसी वजह से रुक जाता है और वो रेसिडेंट के नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंस की कैटेगरी में आ जाता है, तो उस केस में उसका रेसिडेंसी कैसे डिसाइड होगा। हाँ, परफेक्ट। तो इतना बड़ा गूगल में कैसे लिखा, इतना सारा? मतलब ऐसे ही उसको शॉर्ट करके लिखे सर। तुक्के मारने पड़ते हैं। अरे भाई, केस लॉ ढूंढने के लिए कभी भी पहली बार में एक्यूरेट नहीं मिलेगा, 110% बोल रहा हूं मैं भी। सर बहुत बार सर्च करने के बाद मिला, बहुत सारा सर्च करना, तुक्के मारने पड़ेंगे, अलग अलग वर्ड्स डालने पड़ेंगे, बार बार कोई और वर्ड ढूंढो, ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार में कभी नहीं मिलता। तो आप सबको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, तुक्के मारने पड़ेंगे बहुत सारे, तब केस लॉ मिलने शुरू होंगे। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड ज्योतिष एंड वेरी गुड सुमन भारती ऑल्सो। ओके, so the next question number 4. Ambassador, citizen of India, an ambassador who was there in Morocco, और वो ambassador 10 साल से इंडिया नहीं आया है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? चैट बॉक्स में बताइए, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? Yes और no? वो इंडिया में नहीं आया, 10 साल हो गए, रेजिडेंट नहीं है इंडिया का। अरे रेजिडेंट नहीं है इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। सब देखो यस बोलते, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। अरे कोई तो सुन लो, रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, नॉन रेजिडेंट है। हाँ, प्रणय, देखा मेरा दोस्त, प्रणय मेरा दोस्त, असफान मेरा दोस्त, वाह वेरी गुड। 2 बच्चों का आया नो। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर
डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया में हो जाता है, डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया में होने के बाद टैक्सेबिलिटी इंडिया में ही होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रेजिडेंट है चाहे नहीं है। अच्छा, उसकी वाइफ कुछ इनकम अर्न कर रही है, उसकी वाइफ कुछ इनकम अर्न कर रही है, जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर की वाइफ कुछ इनकम अर्न कर रही है, भाई इट विल यू हैव टू फर्स्ट सी कि वो डीम टू अक्रूराइज हो रहा है या नहीं हो रहा। वो डीम टू अक्रूराइज नहीं हो रहा क्योंकि जो कंपनी है जो पे कर रही है वो भी बाहर है, वो खुद भी बाहर है, और वो लेडी पिछले 10 साल से इंडिया नहीं आई तो 110% वो लेडी नॉन रेजिडेंट है। तो पक्का रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड विल नॉट हैम्पर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द वाइफ। अगर हस्बैंड का रेजिडेंशियल स्टेटस या उसकी इनकम डीम टू अक्रूराइज इंडिया में हो रही है, डजंट मैटर, वाइफ का अलग से देखेंगे। और ये बहुत फेमस एक केस लॉ है, CIT वर्सेस शारदा अजमानी 1971 P&H। अच्छा, अब मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दो ये कौन से कोर्ट का जजमेंट है, किस कोर्ट का जजमेंट है ये बता दो कौन से कोर्ट ने जजमेंट दिया था। लिखा है स्क्रीन पे लिखा है, कहीं गूगल करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे लिखा है, बता दो कौन से कोर्ट ने जजमेंट दिया था, अगर कोई अंदाजा लगा पा रहा है तो। आखिरी के जो वर्ड है P&H, इससे पता लग जाएगा आपको, P&H बता दो कौन सा हाई कोर्ट है ये। पंजाब एंड हरियाणा। परफेक्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो हर केस लॉ के बाद लिखा होता है वो किस जगह का हाई कोर्ट है या वो किस जगह का केस लॉ है। सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा होगा SC, सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा होगा SC, हाई कोर्ट होगा तो HC नहीं लिखा होगा, जौन सा हाई कोर्ट होगा वो लिखा होगा। तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट लिखना होता है तो वो लिखते हैं DHC, विच मीन्स दिल्ली हाई कोर्ट, या DEL लिखते हैं, DEL मीन्स दिल्ली हाई कोर्ट। सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये वाला जजमेंट था। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा प्यारा और सबसे अजीज आज के हमारे सेशन का शहंशाह बादशाह, हमारा केस ऑन वोडाफोन सेक्शन 911। आई होप आप सब ने वीडियोस ध्यान से देखी होंगी और 911 सेक्शन पढ़ा होगा, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ऐसी कोई भी इनकम जो अक्रू और अराइज इंडिया में नहीं होती, वो वाली इनकम को भाई डीम टू अक्रू और अराइज बना लिया जाता है अंडर दीज 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस है, बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी असेट इन इंडिया, सोर्स इन इंडिया, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सिचुएटेड इन इंडिया। इस वाले सेक्शन पे आया हिंदुस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट लिटिगेटिव एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोलॉन्ग्ड केस लॉ, जिसका नाम था वोडाफोन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वोडाफोन केस, जिस केस से आपको आंसर मिलेगा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको इस केस लॉ से मिलेगा। तो हम लोग ये केस लॉ पूरा का पूरा स्टडी करेंगे पहले, और उसके बाद हम इस केस लॉ को आपके आंसर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे जो क्वेश्चन का बेस है वो है वोडाफोन इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लड़ाई थी 2 योद्धाओं के बीच में। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जायंट, हजारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर, हजारों करोड़ों रुपए के एसेट्स जो इंडिया में बिखरे हुए थे, फैले हुए थे। एक ऐसा जायंट जो ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने पैर पसार चुका था। हच करके पहले एक कंपनी होती थी, हच। इतनी बड़ी कंपनी को इस वाली कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था, और ना केवल इंडिया में टेक ओवर किया था बल्कि पूरे वर्ल्ड में टेक ओवर किया था। इतनी बड़ी हस्ती थी इस वाली कंपनी की। कंपनी का नाम है वोडाफोन, और दूसरी तरफ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डायरेक्ट उस समय के द देन प्राइम मिनिस्टर, द देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, जिन्हें पॉपुलरली कहा जाता है प्रणब दा, और जिन्हें नॉट सो पॉपुलरली कहा जाता है द इनफेमस फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्हें पॉपुलरली जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वो उन्हें बोलते हैं प्रणब दा, और जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते वो लोग कहते हैं इनफेमस फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये क्यों नाम पड़ा उनका, क्यों नाम पड़ा इनफेमस फाइनेंस मिनिस्टर, इस वाले केस लॉ के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे भाई जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने इनको इनफेमस फाइनेंस मिनिस्टर बोला। और आज की डेट में अगर आप कभी भी इंडिया छोड़ के बाहर जाओगे और वर्ल्ड के टैक्स एक्सपर्ट से बात करोगे तो उनको जरूर एक नाम पता होगा, प्रणब मुखर्जी, हु वाज द इनफेमस फाइनेंस मिनिस्टर। उनको ये नाम जरूर पता होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? चलो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक दरवाजा तुम्हारे सामने खोलता हूं, और वो दरवाजा तुम सबको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था। एंड आई हैड आस्क्ड यू व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस दरवाजा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस दरवाजा, व्हाट डज दिस दरवाजा रिप्रेजेंट्स? दिस गेट रिप्रेजेंट्स
entry to income tax act. If you want to be taxable in Indian Income Tax Act, then you have to be one of the four things. What are those one of the four things? Your income should be accrued or arised in India. Your income should be received in India. Your income should be deemed to accrue or arise in India. और your income should be deemed to receive in India. मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये डीम वर्ड बड़ा खतरनाक वर्ड है. डीम का मतलब ये है जो चीज नहीं है उसको भी एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो चीज है. इसीलिए यह है बहुत ज्यादा खतरनाक चीज, क्योंकि इसमें हमेशा रहेगी कंफ्यूजन. हमेशा इस चीज में रहेगी कंफ्यूजन. क्या ये चीज ए है या ये चीज बी है? हमेशा रहेगा द्वंद, हमेशा रहेगा कंफ्यूजन. तो सबसे ज्यादा जो लिटिगेशन का स्कोप है वो दो चीजों में होता है, डीम टू रिसीव इन इंडिया एंड डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया. देखो लिटिगेशन कभी भी नहीं होगा किस पे? रिसीव्ड इन इंडिया, वो बड़ा क्लियर है. अक्रू एंड राइज इन इंडिया बड़ा क्लियर है, उसमें कभी भी लिटिगेशन नहीं होगा. लेकिन लिटिगेशन हमेशा होगा डीम टू रिसीव इन इंडिया एंड डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया. और हमारा जो वोडाफोन का लिटिगेशन है वो था डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया. ठीक है सर, क्या था ये लिटिगेशन? इतनी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और एक हफ्ते से आपने सस्पेंस बना के रखा है. क्या था ये लिटिगेशन? व्हाट वाज वोडाफोन इंडिया ऑल अबाउट? सो गाइज, आई वॉन्ट यू टू स्टडी दिस स्ट्रक्चर. ये एक स्ट्रक्चर है और हाँ, आप लोगों ने बहुत अमेजिंग डायग्राम्स बनाए. लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी चीज एनालाइज करने से पहले उसका जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे आप सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते. स्पेशली इनकम टैक्स और लॉ, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको हर चीज का पहले डायग्राम बना के देखना पड़ेगा. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम बनाया, बिल्कुल इसी तरह का डायग्राम बनाया जैसा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में था. तो आओ इस डायग्राम को स्टडी करते हैं. अच्छा, अब आपका जो फिंगर्स है वो आपकी फिंगर्स जरूर आपके कीबोर्ड पे होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूं बहुत सारे सवाल. ओके सर, ओके. HSR एक इंडियन कंपनी थी. देखो ये लाइन बनी हुई है, लाइन के ऊपर है इंडिया, लाइन के ऊपर है आउटसाइड इंडिया, लाइन के नीचे है इंडिया. इंडिया में एक कंपनी थी HSR. इंडिया में एक कंपनी थी HSR. ठीक है, अब आपका, मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूं वो सवाल ये है, HSR क्या पर्सन की डेफिनेशन में आएगा? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पर्सन. क्या HSR पर्सन की डेफिनेशन में आएगा? यस. शुभम कह रहा है नो, आकाश कह रहा है यस, प्रशांत कह रहा है नो, मोहित कह रहा है यस, दर्श यस, तनुप्रिया यस, असफान यस, विधि कह रही है नो, हिमांशु यस, ज्योतिष नो, मोहित राइंसवाल यस, अंकित कोहली यस, यशिका यस, सचिन यस, शुभम यस, अभिषेक यस, रवि यस, सौरभ यस, सोनल यस, युवान यस, नैन्सी कह रही है नो, चित्रा कोहली नो, यस, पलक केडिया यस, प्रांजल शर्मा नो, ऋषिका यादव यस, मुस्कान यस, विष्णु यस, सुमन भारती यस, निशांत यस, प्रणय यस, प्रीति यस, रानी यस. ओके, तो मेजॉरिटी कह रहे हैं यस. ठीक है, मुझे नहीं पता कि जो लोग नो कह रहे हैं वो नो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बड़ा क्लियर है पर्सन की डेफिनेशन में एवरी कंपनी इज कैटेगराइज्ड एंड दिस इज अ कंपनी. HSR लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है 2013. तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं नो, मुझे नहीं पता वो क्यों नो कह रहे हैं, बट डेफिनेटली HSR इज डेफिनेटली अ पर्सन इन इंडिया. अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2, क्या HSR इंडिया में असेसी भी है? यस और नो? आकाश सेज अ यस, अफसान सेज अ यस, प्रणय सेज अ यस, सचिन सेज अ यस, शुभम सेज अ यस, अभिषेक कुमार, युवान, सोनल अग्रवाल, ज्योतिष, प्रीति, शुभम. तो यस, मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस. रवि यस, शिवांश यस, प्रांजल शर्मा यस, सचिन यस, ऋषिका यस, मोहित राइंसवाल यस, तनुप्रिया यस, शुभम यस, हिमांशु यस, दर्श पटेल यस, शिवानी यस. चलो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस. ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट. हाँ, ऑब्वियसली गाइज, since that company is located in India, therefore obviously ये कंपनी असेसी भी इंडिया की ही होगी, क्योंकि ये टैक्स भी इंडिया पे ही पे करेगी. देखो, टैक्स पे करना रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट ये है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है आप पे. तो हाँ, जवाब है हाँ, इनकम टैक्स एक्ट आप पे एप्लीकेबल है, क्योंकि आप जो इनकम कमा रहे होगे वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्सेबल होगी. तो यस, HSR असेसी भी है. अच्छा, अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझाता हूं. ठीक है, देखो, एक मॉरिशस कंपनी है, उसने 100% शेयर्स लिए हुए HSR के. फिर एक केमन आइलैंड्स की कंपनी है. केमन आइलैंड्स एक कंट्री का नाम है, जैसे मॉरिशस एक कंट्री का नाम है, केमन आइलैंड्स एक कंट्री का नाम है. उसने 100% शेयर्स लिए हुए मॉरिशस वाली कंपनी के. और फाइनली
सबका सर्वे सर्वा, सबका जो टॉप मोस्ट पर्सन है वो है हचिंसन इंटरनेशनल, जो टॉप पे बैठा है, और 100% शेयर्स सीजीपी के हचिंसन इंटरनेशनल के पास है। अब मैं आपको बता देता हूं, हचिंसन इंटरनेशनल ने ड्यूरिंग द ईयर जो अपने 100% शेयर्स थे वो वोडाफोन इंटरनेशनल को बेच दिए, जो नेदरलैंड्स की एक कंपनी है, और खूब सारे मोटे पैसे अर्न करे जो नेदरलैंड की कंपनी से अर्न करना चाहिए थे। ठीक है, हचिंसन हचिंसन इंटरनेशनल केमन आइलैंड्स के पास खूब सारे पैसे आए। हचिंसन इंटरनेशनल के पास खूब सारे पैसे आए, कहां से आए? वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी से आए। और हचिंसन एनएसआर के जो शेयर्स के पास जो शेयर्स थे, किसके शेयर्स? केमन आइलैंड सीजीपी के शेयर्स, सीजीपी केमन आइलैंड के शेयर जो हचिंसन इंटरनेशनल के पास थे वो किसके पास चले गए? वो वोडाफोन के पास चले गए। ये डील हुई वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी नेदरलैंड्स और हचिंसन इंटरनेशनल केमन आइलैंड्स के बीच ये डील हुई। ठीक है, तो पक्की बात है सर, अगर ऐसी डील हुई तो कैपिटल गेन जरूर अराइज हुआ होगा। बता देना किसके हाथ में कैपिटल गेन्स अराइज हुआ होगा? किसके हाथ में कैपिटल गेन्स अराइज हुआ होगा? कंपनी का नाम लिख के बताओ चैट बॉक्स में। परफेक्ट 2 स्टूडेंट्स का सही जवाब आया, 3 4 5 6 7। परफेक्ट आंसर गाइस, ब्रिलियंट। हचिंसन इंटरनेशनल के हाथ में आया जबरदस्त कैपिटल गेन। अब सुनना, अगर तुम सब इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो, अगर तुम सब प्रणब मुखर्जी होते उस साल में जिस साल ये ट्रांजैक्शन हुई अगर तुम सब प्रणब मुखर्जी होते उस साल में जिस साल ये ट्रांजैक्शन हुई, तो तुम हाथ जोड़ के भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे होते कि हे भगवान, कुछ भी करके मेरा असेसी कौन सी कंपनी बना दे, कौन सी कंपनी को अपना असेसी बनाने की कोशिश करते। अगर तुम प्रणब मुखर्जी होते उस साल में, कौन सी कंपनी से तुम्हें ढेरों करोड़ों रुपए का टैक्स मिलता? अगर मैं तुम पर ऑप्शन दे देता कि तुम इस कंपनी को बना लो अपना असेसी। यस, यू आर राइट, हचिंसन। परफेक्ट। अगर हम प्रणब मुखर्जी होते तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे होते, हे भगवान, काश कुछ ऐसा कर दे करामात कि हचिंसन मेरा असेसी बन जाए, मतलब इंडिया का असेसी बन जाए, और इसको कैपिटल गेन पे मुझे टैक्स देना पड़ जाए। आप डेफिनेटली ये प्रे करते। लेकिन हचिंसन वॉज रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट ऑफ अ फॉरेन कंट्री विच इज केमैन आइलैंड्स। भाई इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, कोई मैनेजमेंट इंडिया में नहीं हो रहा था, कोई बोर्ड मीटिंग इंडिया में नहीं हो रही थी, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं था, कुछ भी इंडिया में नहीं था, सब कुछ इंडिया के बाहर था। तो भाई हचिंसन इंटरनेशनल बन गया क्या? हचिंसन इंटरनेशनल बन गया नॉन रेजिडेंट। हचिंसन इंटरनेशनल बन गया नॉन रेजिडेंट। तो अब वो हचिंसन इंडियन बन गया नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब जरा मुझे बता देना, वो कौन सी 2 तरह की इनकम है जो नॉन रेजिडेंट के हाथों में भी अगर अर्न हो, जो नॉन रेजिडेंट के इनकम में भी हाथों में भी अगर अर्न हो तो इंडिया की गवर्नमेंट उसे टैक्स रिकवर करने के एलिजिबल है? वो कौन सी 2 तरह की इनकम होती है जो अगर नॉन रेजिडेंट के हाथ में भी हो तो भी वो इंडियन गवर्नमेंट अर्न उस पर टैक्स लायबल है, टैक्स को लेवी करने के? प्रशांत गलत जवाब, विधि गलत जवाब। 2 तरह की इनकम पूछ रहा हूं मैं, 2 तरह की इनकम। 2 तरह की वो कौन सी इनकम है जो इवन अगर नॉन रेजिडेंट के हाथ में हो तो भी वो इंडिया में टैक्स हो जाएगी? देखो, रिसीव्ड और अक्रूड एंड अराइज, इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि हमारे केस में ये दोनों नहीं है। डेफिनेटली 4 तरह की इनकम है जो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगी। रिसीव्ड एंड अक्रू और अराइज को छोड़ दो क्योंकि रिसीव्ड और अक्रू और अराइज तो इस केस में हो ही नहीं रहा। ना रिसीव हुआ भाई इंडिया में, कैश इंडिया में रिसीव नहीं हुआ, ना अक्रू और अराइज हुआ। भूल जाओ भाई, भूल जाओ। बाकी 2 कौन सी बची? सर बाकी 2 बची, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया या फिर डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया या फिर डीम टू रिसीव इन इंडिया। हमें पता था, प्रणब मुखर्जी को पता था कि ये 4 तरह की इनकम अगर हो जाए, रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड अराइज इन इंडिया, डीम टू रिसीव इन इंडिया, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, अगर ये 4 तरह की इनकम इंडिया में हो जाए तो फिर वो नॉन रेजिडेंट के केस में भी इंडिया में टैक्सेबल होती है। बस हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में हमारी इस इनकम को फॉल करवा दे कैपिटल गेन की, तो हचिंसन इवन इफ नॉन रेजिडेंट है तो भी इंडिया में टैक्स हो जाएगा। एक एक करके आओ देखते हैं। नंबर 1, क्या ये इनकम
इंडिया में रिसीव हुई है? आंसर इज नो, सवाल ही नहीं उठता, रिसीव तो हुई नहीं। रिसीव हुई है केमन आइलैंड्स ने। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये अक्रू और अराइज इंडिया में हुई है? क्या इसका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में लिखा गया था? क्या वो शेयर्स इंडिया में ट्रांसफर हुए हैं? क्या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी हुई है जिसका मेजर पोर्शन इंडिया में करा हुआ है? आंसर इज नो। चलो थर्ड कैटेगरी में चलते हैं। थर्ड कैटेगरी है डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया। डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, भाई डीम टू रिसीव इन इंडिया में वही हमारे कुछ स्टैंडर्ड केसेस आते हैं। प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन हो, टीडीएस कटा हुआ हो, तो डेफिनेटली डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया में तो ये नहीं आ रही। थर्ड कैटेगरी गई, डीम टू रिसीव इन इंडिया में नहीं आ रही। बची क्या? बची फोर्थ कैटेगरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो अब सारा जो खेल था ना, सारा का सारा खेल, वो कहां रुक गया? वो रुक गया सेक्शन ऑन डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। और फटाफट चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो व्हाट इज द सेक्शन नंबर ऑफ डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। बस सेक्शन बताना, सब सेक्शन की जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर बता दो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का। वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट, सुपर्ब, नाइस नाइस, एवरीवन इज करेक्ट। यस यस, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, यस एब्सोल्युटली। अरे वाह, मैंने तो हमेशा तुम्हें कहा है सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है और तुम सेक्शन भी याद करे बैठे हो। जबरदस्त, वेरी वेरी गुड, सुपर्ब, वेरी नाइस, सुपर्ब। सेक्शन 9, यस। तो अब हमारा जो आखिरी उम्मीद है, जिस उम्मीद के सहारे हम जिंदा हैं, एज प्रणब मुखर्जी ऑफ दैट ईयर इन विच दिस ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड, हमारी आखिरी उम्मीद इस सेक्शन पे आके रुक गई। देखो सेक्शन तुम्हारे आगे है। सेक्शन क्या कहता है? Deemed to accrue or arise in India, section 9(1)(1). All income accruing or arising, whether directly or indirectly, through or from any business connection in India, or through any property in India, or through or any asset or source of income in India, or through the transfer of capital assets situated in India, it will be taxable in India as income deemed to accrue or arise। बस अब हमें अपने दिन का चैन और रात का सुख खत्म कर देना है। हचिंसन एसआर जो हमारी कंपनी, हचिंसन इंटरनेशनल जो हमारी टॉप कंपनी थी, उसके कैपिटल गेन की इनकम को इनमें से किसी भी हेड में डालने के लिए, तो आओ एक एक करके उल्टा शुरू करते हैं। लास्ट हेड है थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। बता देना, क्या कोई कैपिटल एसेट इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में? यस और नो चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में क्विकली लिख दो। बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है भाई, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई कैपिटल एसेट इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है? बताना। परफेक्ट, सबका आंसर बिल्कुल सही। नहीं सर, कोई कैपिटल एसेट इंडिया में ट्रांसफर नहीं हो रहा। परफेक्ट परफेक्ट, सही आंसर। नेक्स्ट देखना, थ्रू और फॉर्म एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अगला आंसर, ठीक है, परफेक्ट, सबने कहा नो, परफेक्ट, सबका आंसर बिल्कुल सही, सबका आंसर बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब दूसरा, थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अरे बता दो जरा चैट बॉक्स में, कौन से एसेट का ट्रांसफर से ये इनकम अराइज हो रही है? कौन से एसेट का नाम लिख के बता दो चैट बॉक्स में। एसेट का नाम लिख के बता दो, कौन से एसेट के ट्रांसफर से ये इनकम अराइज हो रही है? कौन सा वो एसेट है? सोना, चांदी, घर, महल, गाड़ी, कौन सा वो एसेट है जिसके ट्रांसफर से ये कैपिटल गेन अराइज हो रहा है? एसेट का नाम बता दो। शेयर्स, परफेक्ट अंकित कोहली, नो सोनल, रॉन्ग। नैन्सी राइट, शेयर्स। निशांत राइट, शेयर्स। विधि राइट, शेयर्स। युवान राइट, शेयर्स। प्रशांत राइट, शेयर्स। दिलीप राइट, शेयर्स। सचिन शेयर्स। आकाश कंपनी शेयर्स, परफेक्ट आकाश। हर्षित शेयर्स, परफेक्ट। तो जो हमारे एसेट्स है ना, उनका भाई नाम है शेयर्स। अगर उनका नाम है शेयर्स तो जरा बता दो, क्या वो शेयर्स इंडिया में है या इंडिया से बाहर है? तो जो सेकंड लास्ट वाली लाइन जो पर्पल में लिखी है, क्या वो इंडिया में शेयर्स है या इंडिया से बाहर है? तो आपको लिखना है इंडिया, या तो आपका आंसर होगा इंडिया या आपका आंसर होगा बाहर, या तो आपका आंसर होगा इंडिया या आपका आंसर होगा बाहर। तो या तो लिखो इंडिया या लिखो बाहर। अच्छा, सब स्टूडेंट्स लिख रहे हैं इंडिया, तो तुम कह रहे हो ये शेयर्स इंडिया में है। अच्छा, सब स्टूडेंट्स का आंसर है इंडिया, किसी का आंसर नहीं है बाहर। शिवानी का आंसर है बाहर,
रानी का आंसर है बाहर। अच्छा भाई एक बात सुनो, ये शेयर्स कहां से इंडिया में हुए? हम तो शेयर्स ऑफ हचिंसन इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। ये कहां से इंडिया में हुए? ये तो बाहर है इंडिया से। हम कौन से शेयर्स की यहां पर बात कर रहे हैं? हम शेयर्स की बात कर रहे हैं हचिंसन इंटरनेशनल केमैन आइलैंड्स। बताना केमैन आइलैंड्स इंडिया में है क्या? कौन कौन गया हुआ है भाई? कौन कौन गया हुआ है केमैन आइलैंड्स जो इंडिया में है? इंडिया में है क्या केमैन आइलैंड्स? बताना, क्या इंडिया में है केमैन आइलैंड्स? अरे हर्षित सिंह राजपूत बताना, बागपत के आसपास है क्या केमैन आइलैंड्स या बागपत के दूर है कहीं? हर्षित बताएगा। हम लोग उन शेयर्स की बात कर रहे हैं जो किसकी है? हचिंसन इंटरनेशनल की है। हम हचिंसन एचआर के एसआर के शेयर्स की बात नहीं कर रहे। कैपिटल एसेट कौन सा ट्रांसफर हो रहा है? हचिंसन इंटरनेशनल का कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान रखना। हच एसआर का शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, ध्यान रखना। शेयर्स किसके ट्रांसफर हो रहे हैं? हचिंसन इंटरनेशनल केमैन आइलैंड्स के। तो अब दोबारा मुझे सोच के बताओ कि जो शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं और जिन पे इनकम आ रही है वो इंडिया के शेयर्स हैं या बाहर के शेयर्स हैं? इंडिया या बाहर? परफेक्ट, आउटसाइड इंडिया। हाँ शुभम, आउटसाइड। देखो शुभम कह रहे हैं सर ये आप क्या हिंदी में बाहर बाहर लिखवा रहे हो, इसका मतलब होता है आउटसाइड। हाँ भाई हाँ, आउटसाइड। एब्सोल्युटली गाइज, ये शेयर्स इंडिया के नहीं है। अरे भाई इंडिया के शेयर्स होते ना तो बात तो खत्म थी, फिनिश। आगे मैं बात ही नहीं करता, सवाल ही नहीं करता, आगे बात खत्म हो जाती है अगर इंडिया के शेयर्स होते। ये सारे शेयर्स कहां के हैं? ये सारे शेयर्स आउटसाइड इंडिया के हैं। ये इंडिया के शेयर्स हैं ही नहीं। अरे भाई ये शेयर्स इंडिया के अगर नहीं है तो मेरे अगले सवाल का जवाब दे दो। सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो ध्यान से। थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। सोर्स ऑफ इनकम मींस जो एसेट बेचा जा रहा है वो इंडिया में होना चाहिए। क्या ये शेयर्स जो बिक रहे हैं जिन पे कैपिटल गेन आ रहा है, क्या ये इनकम सेकंड लास्ट वाली कैटेगरी जो पर्पल कैटेगरी में लिखा हुआ है उसमें फॉल करती है या नहीं करती है? यस या नो? एब्सोल्युटली राइट, वेरी राइट। नहीं करती भाई, नहीं करती, नहीं करती भाई, नहीं करती, नहीं करती भाई, नहीं करती। अब मेरा हो रहा है बीपी हाई, मेरा बीपी हाई हो रहा है। मेरा बीपी क्यों हाई हो रहा है? अरे आखिरी उम्मीद जो थी ना वो भी खत्म होती दिख रही है। आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। क्यों आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है? आखिरी उम्मीद अगर मैं प्रणब दा हूं और मुझे ये शेयर्स को टैक्स करना है, आखिरी उम्मीद धूमिल से नजर आ रही है। चलो कोई बात नहीं, हिम्मत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। एक स्टेप और ऊपर आते हैं। थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी। अच्छा अच्छा, आकाश सावरा और दिलीप बहुत बहुत होशियार बन रहे हो तुम, रुक जाओ, आराम से आते हैं। थर्ड लास्ट कैटेगरी, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगेन मेरा सेम सवाल, क्या शेयर्स इंडिया में लोकेटेड है? यस या नो? क्या ये प्रॉपर्टी इंडिया में है? यस या नो? क्या ये प्रॉपर्टी इंडिया में है? यस या नो? आंसर इज नो नो नो। आंसर इज नो, ये प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है। परफेक्ट आंसर, ये प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, अगर ये प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है तो मेरा एक और सपना चूर चूर हो गया। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मेरा बीपी अब की बार लो हो रहा है क्योंकि मेरी जो आखिरी उम्मीद थी वो अब खत्म होती जा रही है। चलो आखिरी दाव लगा लेते हैं। उम्मीद तो छोड़ ही दी है, चलो कोई बात नहीं, उम्मीद तो छोड़ ही दी है। आखिरी दाव लगा लेते हैं। आखिरी दाव क्या है? थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इनकम जो अराइज हो रही है वो किसी बिजनेस कनेक्शन से अराइज हो रही है जो इंडिया में होना चाहिए। कोई बिजनेस कनेक्शन जो इंडिया में होना चाहिए। ये देखो सारे के सारे लालची, सारे के सारे लालची जो फाइनेंस मिनिस्टर बने बैठे हैं ना, सारे के सारे लालची, वो सब लिख रहे हैं यस। हाँ बहुत अच्छे, सबका यस आया है। सब लालची, सब के सब टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं। टैक्स मिलेगा, बिल्कुल आकाश छाबरा, यही तो ऑब्जेक्टिव है, टैक्स मिलेगा, इसलिए तो तुम ये लालच कर रहे हो। सब के सब लालची। अरे भाई एक सीरियस सी बात बताओ, सीधी सी बात बताओ, लालच को परे रख दो। मोह, माया, काम, क्रोध, लालच, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारे दिमाग को खराब कर देती हैं। ठीक है, हमारे दिमाग को क्योंकि खराब कर देती है तो इन चीजों को साइड में रखो और मुझे बताओ, बेचारे जो हचिंसन है
उसके नीचे 2 और सब्सिडरीज है, स्टेप सब्सिडरीज बोलते हैं ना, और इतने दूर का रिलेशनशिप है हचिंसन एचआर के एसआर इंडिया के साथ। इतना दूर का रिलेशनशिप, इतना दूर का रिलेशनशिप, जैसे मेरी बुआ के, मामी के, मौसा के, चाचा के बेटे के बहनोई के दामाद का बेटा है। अरे बड़ा करीब का रिलेशनशिप है। बताना जरा, क्या ये बिजनेस कनेक्शन बड़ा करीब का है या कनेक्शन बहुत दूर का है? क्या ये बिजनेस कनेक्शन कोई बड़ा करीब का है या काफी दूर का है? और बताना, एक्चुअल बात पूछ रहा हूं भाई, एक्चुअल बात। अरे भाई, क्या कोई बिजनेस कनेक्शन है भी? क्या दोनों कंपनीज में कोई बिजनेस कनेक्शन है भी? क्या इन दोनों कंपनीज का कोई रिलेशनशिप है भी? दूर का रिलेशनशिप, बड़े दूर का रिलेशनशिप, वो भी स्टेप सब्सिडरी की स्टेप सब्सिडरी की स्टेप सब्सिडरी हमारी HSR है। बहुत दूर का रिलेशनशिप है। बहुत मुश्किल है ये कहना कि कोई बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है या नहीं होता, बड़ा मुश्किल है कहना। तो ये मैटर जो मैं तुम्हें बता रहा हूं बहुत मुश्किल है, पहले वाले पार्ट में फॉलो करना बहुत मुश्किल है। ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट सुपर्ब जजेस, आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन अलॉट, मिस्टर SH कपाड़िया। हरीश साल्वे तो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, हरीश साल्वे तो लॉयर थे, लॉयर। मैं जज का नाम बोल रहा हूं, जज जिन्होंने ये केस डिसाइड किया था, जज का नाम था मिस्टर SH कपाड़िया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका इनका नाम के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। केस का जरा डेट देखना, डेट क्या है, जनवरी 20, 2012 में ये केस आया, जिसने ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया कि ये क्या हो रहा है। आ जाओ केस लॉ को पढ़ते हैं एक बार। ये कंक्लूजन है भाई, केस लॉ तो 300 पेज का है। केस लॉ नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, फाइनल कंक्लूजन मैंने यहां कॉपी पेस्ट किया हुआ है, फाइनल कंक्लूजन तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आओ पढ़ते हैं। कैपिटल गेन्स ऑफ शोर ट्रांजैक्शन, ऑफ शोर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो इंडिया में नहीं होती, इंडिया के बाहर होती है। टेरिटोरियल टैक्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया टैक्स अथॉरिटी, क्या इस ऑफशोर ट्रांजैक्शन पे इंडिया टैक्स अथॉरिटी का कोई ज्यूरिसडिक्शन है टैक्स कलेक्ट करने का? यह सवाल था। ट्रांजैक्शन बिटवीन वोडाफोन इंटरनेशनल एंड HTIL, which is Hutchinson International, both companies incorporated outside India with regard to sale and purchase of the entire share capital of CGP, जिसके शेयर कैपिटल चेंज करे गए थे, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था। डायग्राम एक बार फिर देख लो भाई, डायग्राम एक बार फिर देख लो। कंपनी के नाम याद कर लो, कंपनी के क्या नाम है वो ध्यान से याद कर लो, कंपनी का क्या नाम है वो देख लो। फिर मैं आ रहा हूं केस लॉ पे, आओ पढ़ते हैं केस क्या कहता है। रेवेन्यू मेरे साथ साथ पढ़ना, जहां जहां मैं पढ़ रहा हूं वहां वहां पढ़ना, एक सेकंड भी आगे मत जाना, एक सेकंड भी पीछे मत होना। रेवेन्यू सीकिंग टू टैक्स, रेवेन्यू की कोशिश कि वो टैक्स करना चाहता है। कैपिटल गेन्स arising from sale of share capital of CGP on the basis that CGP held underlying Indian assets। तो CGP 2 स्टेप सब्सिडरी के बाद इंडियन शेयर्स को होल्ड करती है, इसलिए हम CGP को कैपिटल गेन जो टैक्स CGP के शेयर बेचने पे हो रहा है, हम उसे इंडिया में टैक्स करना चाहते हैं। आगे देखो, हेल्ड, हेल्ड का मतलब कंक्लूजन, हेल्ड का मतलब कंक्लूजन। देखना कंक्लूजन क्या है। इंडिया टैक्स अथॉरिटी हैड नो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, इंडिया टैक्स अथॉरिटी के पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू टैक्स द सेड अफोरसेड ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन को टैक्स करने का राइट इंडियन टैक्स अथॉरिटी के बाद नहीं है। अप्लाइंग द लुक एट टेस्ट, अरे भाई ये तो देखो कि जो शेयर्स हैं उनके पहले 2 ऐसी कंपनीज हैं जो तुम देख ही नहीं रहे। शेयर्स जो हैं वो कोई डायरेक्टली इंडियन कंपनी के थोड़ी सेल हो रहे हैं। देखो इंडियन कंपनी के ऊपर कौन सी है, मॉरिशस कंपनी, मॉरिशस कंपनी के ऊपर कौन सी है, केमन आइलैंड की कंपनी। अरे केमन आइलैंड की कंपनी के शेयर बिक रहे हैं भाई, मॉरिशस कंपनी के शेयर थोड़ी बिक रहे हैं। कोई डायरेक्ट सौदा थोड़ी है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप थोड़ी है, ये तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। आगे देखो क्या कहता है SH कपाड़िया, अप्लाइंग द लुक एट टेस्ट, जरा लुक एट करो, लुक थ्रू मत करो, उस बीच वाली एंटिटी को बिल्कुल खत्म मत कर दो। इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ ट्रांजैक्शन, the offshore transaction in the instant case is a bona fide structured FDI investment। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका था जो कंपनी ने आजमाया। नॉट टैक्सेबल, द सेड ऑफशोर ट्रांजैक्शन एविडेंसेस पार्टिसिपेटिव इन्वेस्टमेंट,
तो जो ये ट्रांजैक्शन है ये इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रही है एंड नॉट अ शैम ट्रांजैक्शन। ये शैम का मतलब नकली ट्रांजैक्शन नहीं है। इस ट्रांजैक्शन का जो मकसद था वो टैक्स को इवेड करना नहीं था भाई, ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन। और बीच में मॉरिशियन कंपनी है, तो अगर मॉरिशियस कंपनी के शेयर्स बिक रहे होते तो फिर भी एक बार को बोलते कनेक्शन है, क्योंकि मॉरिशियस कंपनी किसके शेयर होल्ड करे हुए हैं, इंडियन कंपनी के शेयर होल्ड करे हुए हैं। तो अगर मॉरिशियस कंपनी के शेयर बिकते एक बार को फिर भी कहते कि ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है। बट अभी शेयर किसके बिक रहे हैं? शेयर बिक रहे हैं केमैन आइलैंड्स के। क्योंकि शेयर बिक रहे हैं केमैन आइलैंड्स के, इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि केमैन आइलैंड्स के जो शेयर्स हैं क्या उनका डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है या नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधे से अपना ओपिनियन दिया दैट दिस ट्रांजैक्शन इज डेफिनेटली नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट इस ट्रांजैक्शन को टैक्स नहीं कर सकती। बता देना, क्या मुझे अब अपना बीपी हाई कर लेना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख के बता देना, क्या मुझे अपना बीपी हाई कर लेना चाहिए? अब तो मेरी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। क्या मैं अपना बीपी हाई कर लूं, यस या नो? हाय सर, हाय सर, हाय सर, हाय सर, हाय हाय, सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं हाय। अच्छा नो, आकाश कह रहे हैं नो, आकाश कह रहा है अरे सर शांति रखो कोई बात नहीं, नो क्लास कराना। आकाश स्टिल कह रहे हैं नो। अभिनय प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाय हाय, सब कह रहे हैं हाय सर, हाय कर लो अपना बीपी। बिल्कुल सर, हाय कर लेना चाहिए। अरे नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूं, मैं कोई अपना बीपी वीपी हाई नहीं करने वाला। साम दाम दंड भेद, मैं कोई भी तरीका अपनाऊंगा और इस वाली ट्रांजैक्शन को टैक्स करके रहूंगा। मैं कोई भी तरीका अपनाऊंगा और इस ट्रांजैक्शन को टैक्स करके रहूंगा। मैं कोई बीपी वीपी हाई नहीं करता। मैं हूं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री। उसका नाम है प्रणब मुखर्जी। अब सुनना, प्रणब मुखर्जी ने क्या किया। प्रणब मुखर्जी ने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी। सुनना, ध्यान से सुनना। प्रणब मुखर्जी ने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी सेक्शन 9 के बिल्कुल नीचे और एक एक्सप्लेनेशन डाल दी। किस ईयर में डाली? 2012 में डाली, जब सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ आया। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ आया, प्रणब मुखर्जी ने एक अमेंडमेंट डाली। अमेंडमेंट का जरा वर्डिंग सुनना, साथ में वर्डिंग पढ़ेंगे इस अमेंडमेंट की। वर्डिंग सुनना, एक्सप्लेनेशन 5, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स it is hereby clarified that an asset or a capital asset being any share or interest in any company। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये एक्सप्लेनेशन। मैं हूं प्रणब मुखर्जी, मैं चिंता नहीं करता, मैं बीपी हाई नहीं करता। हम टेंशन देते हैं, लेते नहीं है भाई, लेते नहीं है। एक्सप्लेनेशन सुनना, एक्सप्लेनेशन क्या बोली? एक्सप्लेनेशन बोली, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज hereby clarified that an asset or capital asset being any share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India shall be। अब ध्यान से पढ़ने वाली बात है, अब सबके कान और आंखें खोल देना, अपनी आंखें और कान खोल देना। shall be deemed to be and shall always have been deemed to be situated in India if the share interest derives directly or indirectly its value substantially from assets लोकेटेड इन इंडिया। हिंदी में मतलब समझना, हिंदी में मतलब, इस इंग्लिश का मतलब आप हिंदी में समझना। कोई भी ऐसे शेयर्स जिसकी कंपनी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, उन शेयर्स की वैल्यू अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से डिराइव होती है। दोबारा सुनना, कोई भी ऐसे शेयर्स, आओ मैं डायग्राम के साथ समझाता हूं। कोई भी ऐसे शेयर्स, हम यहां पर बात कर रहे हैं हचिंसन इंटरनेशनल के शेयर्स की। कोई भी ऐसे शेयर्स जिनकी वैल्यू, हम बात कर रहे हैं सीजीपी इन्वेस्टमेंट के शेयर्स की, सीजीपी इन्वेस्टमेंट जिसके शेयर्स सेल हुए। कोई भी ऐसे शेयर्स जिसकी वैल्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, ये वर्ड जानने वाले भाई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखो, अगर डायरेक्टली होता तो मैं नहीं फंसता। क्यों नहीं फंसता? क्योंकि सीजीपी हच एसआर के शेयर्स नहीं होल्ड करे हुए, लेकिन सीजीपी इनडायरेक्टली हच एसआर के शेयर होल्ड करे हुए हैं, तो मैं फंस गया। तो प्रणब मुखर्जी ने बड़ा स्मार्टली, देखना, सेक्शन चेंज किया। क्या बोला? अगर शेयर्स किसी भी कंपनी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, एसेट्स हच एसआर के हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं, तो हम
ये मान लेंगे, पढ़ना जरा वर्ड्स, हम ये मान लेंगे कि वो वाले शेयर्स का सेल इंडिया में अक्रू या राइज डीम हुआ है। और कौन से सेक्शन में मानोगे भाई, कौन से सेक्शन में मानोगे? ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है इसमें मान लेंगे, बिजनेस कनेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो जो पुराने स्टूडेंट, जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, प्लीज बस मुझे 10 मिनट देना। ये केस लॉ के बाद हम रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट शुरू करेंगे। अभी हम केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। ओके, तो बताना कौन से सेक्शन में आप फॉल कर जाओगे। अब इस वाले अमेंडमेंट के बाद ये देखना, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है कि हम शेयर्स की वैल्यू अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से डिराइव करते हैं तो हम उसे बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे भाई। अब बताना जरा, बीपी हाई रखूं या बीपी नॉर्मल रखूं? बीपी हाई रखूं या बीपी नॉर्मल रखूं? बीपी हाई या बीपी नॉर्मल? लालची इंसान, किसी ने नहीं कहा सर आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, बेचारे को मत फंसाओ ना। अरे अब क्यों हाई रखना है, अब तो नॉर्मल रखना है नालायक। अब थोड़ी हाई रखूंगा, मार डालो तुम सब मिलके मुझको, अब तो नॉर्मल रखना है। चलो एक और परेशानी है भाई, एक और परेशानी। नॉर्मल बीपी तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक और परेशानी है साथ में, एक और परेशानी है भाई। परेशानी सुन लो, परेशानी ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी ये 2012 में नहीं हुई, ये हुई थी 2012 से बहुत 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 पहले। सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ आया 2012 में, अमेंडमेंट हुई 2012 में, लेकिन जो ये ट्रांजैक्शन हुई थी ये हुई थी बहुत पहले, 2005 में या 2002 में, 2003 में, बहुत पहले ट्रांजैक्शन हुई थी। ये ट्रांजैक्शन 2012 में नहीं हुई। तो बताना, जो मैंने लॉ चेंज किया 2012 के बाद वो 2006 में तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। अब बताना, मैं अपना बीपी वापस हाई कर दूं या बीपी लो नॉर्मल रहने दूं? वापस मेरा बीपी हाई कर दूं क्या? सर होगा, क्योंकि नॉर्मल सर, नॉर्मल रखूं या हाई कर दूं बीपी? नॉर्मल सर फ्रॉम 9 to 62 है सर, चिंता मत करो। अब ऐसे सब बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मुझे यहां पर चैट बॉक्स में लिख के बताओ, बीपी हाई करूं या नॉर्मल कर दूं? सर नॉर्मल रखो, नॉर्मल, क्योंकि सर आप हो प्रणब मुखर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। सुनो क्या क्या गवर्नमेंट ने इस वाली अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट मतलब ये लोग 1962 से ये वाली अमेंडमेंट को लेकर आए, 1962 से ये वाली अमेंडमेंट को ये लोगों ने कार्यान्वित किया। अब देखो कितनी गलत बात, कितनी गलत बात। सुनना जरा, सिचुएशन सुनना। क्या सिचुएशन? ये मैंने आपसे बोला टैक्स की फीस जो आपको देनी है वो देनी है 6,000 रुपीज। मैं आपको जो आपका सिलेबस दूंगा वो थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, अगले 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस मैं आपको दूंगा। मैं आपसे फीस एडवांस में लूंगा 6,000 रुपए। 1 महीने बाद मैंने आपको बोला कि भाई टैक्स की फीस 6,000 रुपए नहीं 7,000 है। आपने मेरे को कहा हां सर अगले बैचेस के लिए 7,000 है ना। मैंने कहा नहीं, आपके बैच के लिए पुराना रेट्रोस्पेक्टिवली भी ये 7,000 है, ये 6,000 नहीं है। बात बताना गलत या सही? गलत। लिख के बताओ चैट बॉक्स में, बात बताओ गलत या सही। हाँ, अब कोई भी सही नहीं कहेगा ना, क्योंकि अब फीस की बात आ गई तो अब आप लोग अपने पे लेके जाओगे, तो अब क्यों सही कहोगे? वैसे तो बड़े खुश हो रहे थे प्रणब दा ने जो किया उस पे, तो बिल्कुल सही, आप सबने सही जवाब दिया। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर केस लॉ। अच्छा शुभम कह रहा है सही। अच्छा ठीक है शुभम, तो तुम्हारी क्लासेस पॉज करी जा रही हैं और तुम्हें 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है और तभी तुम्हारी आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। शुभम कह रहा है सही, शुभम को 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है। सोनल कह रही है हमारा बीपी हाई हो गया सर। ठीक है गाइज, तो बस यही रीजन है जिसकी वजह से प्रणब दा को बोला गया कि प्रणब दा you are less popular, you are an infamous finance minister, you are not a finance minister who is very famous, you are an infamous finance minister, क्योंकि प्रणब दा लाए थे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, ऐसी अमेंडमेंट जो जिस साल इंट्रोड्यूस हुआ उस साल से नहीं लगेगी भाई, उससे बहुत 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 पहले से लगेगी, 1962 से लगेगी। तो दिस इज द वर्ल्ड फेमस, ये इंडिया में फेमस नहीं है भाई केस लॉ, ये इंडिया में फेमस नहीं है। दिस इज द वर्ल्ड फेमस केस लॉ ऑफ वोडाफोन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ इंडिया के ही
टैक्स एक्सपर्ट्स नहीं पढ़ते, सिर्फ इंडिया के ही मिनिस्टर्स नहीं पढ़ते, सिर्फ इंडिया के ही फाइनेंस प्रोफेशनल्स नहीं पढ़ते, सिर्फ इंडिया के ही टैक्स कंसल्टेंट्स नहीं पढ़ते, सिर्फ इंडिया की ही फैकल्टीज और टैक्स के रिसर्चर्स नहीं पढ़ते, बल्कि ये वाला केस लॉ पूरे वर्ल्ड में सब लोग पढ़ते हैं, वोडाफोन इंडिया। तो आई होप, वैसे तो एक केस लॉ में और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट मैंने एक ब्रॉड लेवल पे आपको समझाया है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, बताना कुछ क्लैरिटी मिली इस केस लॉ पे, मजा आया क्या इस केस लॉ को पढ़ के? कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हो। एनी डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस केस लॉ? एनी डाउट? सर एक डाउट है। यस, नाम बताओ सर पहले। ऐसे सर आकाश। आकाश, यस आकाश छावरा, टेल मी। सर मतलब ऐसे तो सर हमारी कंट्री का लॉ है तो हम उसमें कुछ भी बना सकते हैं, तो सर कहीं ना कहीं इमोरल हुआ ना। आकाश, यही तो दिक्कत है जिसकी वजह से एमएनसीज ये कहती हैं कि हम इंडिया में बिजनेस नहीं करेंगे। यही रीजन है। एक बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है इस चीज के लिए, वर्ड का नाम है टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म, ये वर्ड इंडिया से ही इजाद हुआ है, और यही रीजन है जिसकी वजह से कई एमएनसीज कहती हैं हम इंडिया से काम नहीं करेंगे। तो टैक्स टेररिज्म का मतलब है आप अपनी अपनी चलाते हो टैक्स के मामले में, टेररिस्ट की तरह रोल प्ले करते हो। जैसे आप क्लास के बीच में कमेंट बाजी करके जब आप क्लास को डिस्टर्ब करते हो, कुछ बच्चों की आदत होती है वो क्लास में कुछ ना कुछ कमेंट बाजी करते रहते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि वो स्टूडेंट्स हैं टेररिस्ट। उसी तरह से ये है टैक्स टेररिज्म। और यही रीजन था कि प्रणब दा को हमेशा बोला गया है एन इनफेमस फाइनेंस मिनिस्टर, ही इज एन इनफेमस फाइनेंस मिनिस्टर। तो यस गाइस, दिस इज द केस लॉ ऑफ वोडाफोन। यस पलक? सर जैसे कि सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछने दो भाई, सबके फिंगर्स चैट बॉक्स में होंगे, सबके हैंड्स अपने कीबोर्ड में होंगे। बताना ये जो पलक केडिया है ये कोई नॉर्मल सीएमए इंटरमीडिएट की स्टूडेंट पलक है, या फिर ये हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पलक है? नालायक सब लोग जवाब भी देने लगे। अरे भाई ये क्लास का जोक है, ठीक है, ये कोई लाइव सेशन का जोक नहीं है, तो मैंने ऐसे ही मारा। चलो पलक बताओ, पलक अपना क्वेश्चन पूछो। सर ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला था इस केस लॉ की वजह से, तो मतलब ऐसे तो और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी ना जिनका इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो उनको भी फिर करना पड़ा था। यस एब्सोल्युटली। इसके चक्कर में, वोडाफोन के लपेटे के चक्कर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो इसके चक्कर में आई थी, और उन्हें भी टैक्स नेट में ले आया गया था इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बाद। बहुत सारी ऐसी कंपनी, तभी तो इस अमेंडमेंट के बाद तभी तो वर्ल्ड लेवल। यस, केन एनर्जी, ब्यूटीफुल सोनल, ब्रिलियंट शुभम, ब्रिलियंट शुभम, बहुत अच्छा एग्जांपल है। केन एनर्जी भी फंसी थी सेम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की वजह से। एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया गया, एक तीर से बहुत सारे निशाने करे गए, और बहुत सारे लोग फंसे थे इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बाद। तभी तो पूरे वर्ल्ड में इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की बुराई करी गई थी। हाँ शुभम बोलो। सर ऐसे तो आप कल को फीस बढ़ा दोगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हाँ शुभम, नहीं कर पाओगे कुछ, क्या करें? सर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में। कोर्ट में जाओ, मैं लॉ चेंज कर दूंगा रेट्रोस्पेक्टिवली, मैं लॉ चेंज कर दूंगा रेट्रोस्पेक्टिवली। और एक शुभम है जो इस बात को जायज भी मानता है, किसी ने लिखा था यस, तो उस शुभम से तो मैं फीस रिकवर करूंगा एक्स्ट्रा। 1 महीने बाद जब मेरा आधा कोर्स मैं आपको दे दूंगा तब मैं एक्स्ट्रा फीस रिकवर करूंगा ही करूंगा भाई। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट मैं भी लाऊंगा। अब जब मुझे पता ही ये होता है इंडिया में, तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा एक और टेस्ट शुरू करते हैं भाई जल्दी से। 7:15 हो गए, 15 मिनट ऑलरेडी। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनका December 21 में अटेम्प्ट है, मैं उनका और समय वेस्ट नहीं करना चाहता, उनके ऑलरेडी 15 मिनट वेस्ट हो गए हैं। उनका एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है। उन सारे स्टूडेंट्स का जिनका December 21 में अटेम्प्ट है, उनको कोई IPL नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो रात को मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरी टीम जीत गई, और ऐसे फालतू की वो चीज़ें इस समय भी देख रहे हैं। मैं हैरान हूँ कैसे देख रहे हैं, मैं उनका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, हरीश साल्वे जिन्होंने केस लड़ा था वोडाफोन की तरफ से, इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आने के बाद उनका एक कमेंट अखबार में छपा था। कमेंट सुनना क्या छपा था। कमेंट ये छपा था, इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, देन डू द बिजनेस इन द इंडियन वे। अब ये इशारों की बात है, मेरे से मत पूछना क्या हरीश साल्वे ने कहने की यहाँ पर कोशिश करी थी, लेकिन उनका कमेंट आया था अखबार में। कमेंट था, इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया देन डू इट इन द इंडियन वे। इंडिया के तौर तरीकों के हिसाब से बिजनेस करना शुरू कर दो, जो इंडिया के तरीके हैं
वरना आप इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाओगे। अब उनका क्या मतलब था वो आप लोग अंदाजा लगा लो। ओके, नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट आवर रेजिडेंशियल स्टेटस टेस्ट। प्लीज ओपन योर रजिस्टर्स एंड योर कैमरास शुड बी ओपन, ऑल ऑफ योर कैमरास शुड बी ओपन and just open your registers. Your register should be in front of you, and all of you, can you see the PPT which is there on the screen? Yes, sir. Okay. Please open your cameras.